Hi everyone, welcome to EA Spoken English production. Myself, Imran Ali Rai. Today we are going to do the part 4 for the kids and parents series, How to Speak English with Kids. The first word and the first sentence and the first tip of the day in the last lecture, we are going to do admire. How to admire your children, how to appreciate them so that they will feel happy. Well, first thing that you need to put impression as you are going to admire, say मुझे तुम पर फख्र है. I'm proud of you. I am proud of you. I'm proud of you. I'm proud of you. तुम मेरी आँख का तारा हो. You are an apple of my eye. You are an apple of my eye. Just link the word to words one to one, such as you are an. You are an apple of my eye. You are an. You are an apple of my eye. तेरे बिना एक पल भी रहना मुश्किल है, नामुमकिन है. My day isn't complete without you. इसमें complete को as a noun इस्तेमाल किया गया है, यानी मुकम्मल, मुश्किल. मेरा दिन मुकम्मल नहीं होता आपको मिलने के बगैर, आपके बगैर, आपको देखे बगैर. Whatever the real kind of translation in order is तेरे बिना एक पल भी रहना मुश्किल है. My day isn't complete without you. रोना बंद करो. Stop mourning, be changed. Oh, stop mourning, be changed. Change. Stop mourning. चुप हो जाओ, रोइए मत, रोना बंद करो, वगैरह वगैरह. Stop mourning, be changed. जब कोई बात कर रहा हो तो टोका मत करो. Don't interrupt while talking. Don't interrupt others while talking. जब कोई बात कर रहा हो तो टोका मत करें. Don't interrupt others while talking. जैसा कहा है वैसा ही करो. जैसा कहा जाए वैसा ही करो. Do as you are told. 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 जैसा कहा है वैसा करो. जैसा कहा जाए वैसा ही करो. Do as you are told. वो नहाते नहाते फिसल गई. She was slipped while showering. वो अपने बच्चों को नहला रही थी. She was showering her children. She was showering her children. वो तो बुद्धू है. He is dunes. वो तो बुद्धू है. He is dunes. इतने कमीने मत बनो. Don't be so mean. Don't be so mean. इतने बदतमीज मत बनो. Don't be so insolent. ये गुब्बारा किसने फोड़ा? Who blasted the balloon? Who blasted the balloon? गुब्बारा किसने फोड़ा? Who blasted the balloon? यानी गुब्बारे का फूटना, फटना, गुब्बारे का फोड़ा जाना ब्लास्ट कहलाता है. लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं. It appears यानी कि लगता है. It appears लगना, जाहिर होना. It seems ऐसा लगना. लगता है it appears. तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं. You are off from your wit. तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं. You are off from your wit. लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं. It appears you are off from your wit. लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं. It seems you have lost your wits. लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं. It seems you are out of wits. यानी you are out of wits. मुझे आपसे कुछ कहना है. I have a word with you. I have a word with you. मुझे तो ये आपसे तवक्को थी ही नहीं. I wasn't expecting this from you. I was not expecting this from you. Del, मुझे कुछ सुकून करने दो. Del, please give me peace of mind. Del is a name. It's a noun. ये बच्चे का नाम है. ऐसा बच्चा
जो वहाँ रहता है जहाँ से मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ। ऑलराइट, मैं अक्सर ये लाजमी सुनता हूँ, डेल प्लीज गिव मी पीस ऑफ माइंड। व्हाटएवर, वेल प्लीज गिव मी पीस ऑफ माइंड, मुझे कुछ सुकून करने दो। डेल बहुत ज्यादा बदतमीज है, बहुत तंग करता है अपनी मम्मा को। एनीवे, सुन न ले वो कहीं मैं उनकी नकल कर रहा हूँ। ये मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। दिस इज अनबियरेबल, दिस इज अनबियरेबल। बस बस बस, बहुत हो गया अब, और नहीं चलेगा। That's enough, and enough is enough. That's enough, and enough is enough. No way, no way anymore. 3 किस्म के no way, यानी कि no way anymore। या तो ये कह दें no way, या फिर no way anymore, फिर that's enough and enough is enough। बस बहुत हो गया, अब और नहीं चलेगा। मुझे अब आपसे बिल्कुल ही नफरत है। I totally hate you. I totally hate you. I totally hate you. Wow, wonderful. बात करने के एक्सप्रेशन भी होते हैं। वंडरफुल कह तो दिया, लेकिन उस वर्ड का मजा ना सुनने वाले को आया ना बताने वाले को आया। एक्सप्रेशन जो है वो स्पीक्स लाउडर। जो एक्सप्रेशन होते हैं वो ज़्यादा शो होते हैं, बताते हुए उसको एक्सप्रेस किया करें, वर्ड को मज़ा लिया करें। वाव वंडरफुल, एक है वाव वंडरफुल, वाव वंडरफुल, वंडरफुल, फैंटास्टिक, अमेजिंग। ऑलराइट, एक्सप्रेशन की बॉडी लैंग्वेज ये कुछ ठीक है। दैट्स प्रीटी गुड, काम कर लिया, ठीक हुआ, इतना भी अच्छा नहीं लेकिन ठीक है। दैट्स प्रीटी गुड, प्रीटी 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 गुड, प्रीटी, ठीक हो डी में, प्रीटी गुड, दैट्स प्रीटी गुड। आपने कर दिया, यू हैव मेड इट, यू हैव मेड इट। अब क्या कर दिया, यू मेड माई डे, यानी आप खुश हो उस पर, आप उस पर खुश हो, कोई अच्छा काम उसने कर दिया, आप इस तरह से भी उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। यू मेड माई डे। अगर उसने खराब कर दिया, यू रूइन माई डे, यू मेड माई डे, यू रूइन माई डे। गुस्से वाला नीचे, प्यार वाला ऊपर, यू मेड माई डे। ये हुई ना बात, दैट साउंड्स लाइक गुड गर्ल, दैट साउंड्स लाइक गुड बॉय। ये हुई ना बात, that more sounds like good girl। Well, आप इसके मिस्टेक थे और ये आपको मिलना ही था। Well, you deserve it, यानी उसकी कामयाबी पे, उसके अच्छे रिजल्ट पे आप उसको कह सकते हो, you made my day, you deserve it। Wow, wonderful। Oh dear, जब आप तंग हो उससे, थोड़ा सा अनाय किया उसने आपको तंग किया, इश्तियाल दिलाया। Oh dear, oh no, oh no, oh God, oh my goodness, whose child is this? ये बच्चा किसका है? Whose child is this? Whose child is this? Whose child is this? ये किसने किया? Who did it? Who did it? Who did it? यानी who did it? Who did it? यानी who did it? Who did it? ये किसने किया? Who did it? Very simple. Try to change your pronunciation. Instead of saying who did it, say who did it? Who did it? Who did it? तुम्हारी ये जुर्रत, how deep you are, how deep you are। क्या आप अपने वालिदैन को पसंद करते हो? Hello kids, do you like your parents? Do you? D and you just combine, jumble together. Say do you? Just link word to word. Do you? Do you like your parents? Do you like your parents? Hello kid. मुझे
गुस्सा मत दिलाओ। Don't annoy me. Don't annoy me. गुस्सा मत दिलाओ। Don't annoy me. Don't annoy me. Don't annoy me. तुम मुझे देखो, तुम मुझे बहुत दुख दे रहे हो। You are hurting me badly. You are hurting me badly. You are hurting me badly.